पद्मश्री स्वामी निर्जानंद सरस्वती जी का अभी मैं एक वीडियो चलाने जा रहा हूँ। वो वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन आप उसको देखिए। ये वीडियो पूरा होने के बाद मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। फ्यूचर ऑफ मेडिसिन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके बारे में ये बता रहे हैं। सुनिए इंग्लिश में। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, उस वीडियो के एंड में मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ओके। I met a scientist in Europe last year, and he's a scientist from NASA, working with astronauts and looking after their health and well-being when they are far away in space. And I asked him that how do you manage with illnesses and diseases in space? When astronauts are living in the space station for 6 months, do they carry suitcases full of medicine with them? In anticipation that I might develop hernia, I might develop blood pressure, I might develop this, I might develop that. Do they carry medication with them? And what happens if they fall sick? He said, Swamiji, we are working on a new system of therapy known as quantum therapy, and which we are successfully using with the astronauts. What is that quantum therapy? He said, it is a computer with a special software. And in the computer we feed in all the physical parameters, the blood pressure, the heartbeat, the pulse, the temperature, the this, the respiration, all the physical parameters of the astronaut. And the computer assigns a particular frequency to the person. The frequency of that person is captured by the computer. And no matter where the person is on the planet or out of the planet, as long as that person is alive, the computer will continue to pick up that frequency being emitted by the person. And through the computer we can treat the person. If we know that he is going to have headache, we can feed in the information in the computer, and the electromagnets will be beamed from Earth to that person, and that beam of electromagnets will alter the function of his body in space, and he will not have headache. And he said, in this manner we can treat many other illnesses. And we can anticipate by looking at these parameters through regular testing that there is the possibility of this particular disease coming up in this life in future, and treat it. And he further said that hopefully by year 2050 we are working on that. But everybody will be carrying their own personal small computer with them, just monitoring their health and treating themselves. There won't be any need of medicine. There won't be any need of doctor. For major intervention, all these facilities will exist, but every person will have their own personal computer with their frequency. And if you look at it, you feel that headache is coming along, you just run the program for headache, and headache will go away. If you feel low in energy, you zap yourself with feel-good energy, and you will be fine. I said to him, do you know what you are talking about?
all the notions of the conventional therapies will come down. तो आपने ये देख लिया होगा वीडियो पद्मश्री स्वामी निर्जानंद सरस्वती जी का। मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नासा के साइंटिस्ट वो मिले और उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये जो स्पेस में जो जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, अवकाश यात्री जिसको कहते हैं हम, तो क्या वो वहाँ पे बीमार नहीं पड़ते होंगे? उनको भी कुछ ना कुछ इश्यू आता होगा, कहीं पे सिर दर्द हो सकता है या ब्लड प्रेशर इधर उधर हो जाना या शुगर इधर उधर हो जाना या और भी कोई फिजिकल इलनेस, बीमारी। तो क्या वो सब दवाई लेके जाते हैं वहाँ पे? तो नासा के साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं, हमने एक ऐसा कंप्यूटर डिजाइन किया हुआ है, उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि उन सब एस्ट्रोनॉट के डेटा इसमें है। अब एस्ट्रोनॉट को अगर वहाँ पे कोई भी इश्यू होता है, कोई भी इलनेस या सिर दर्द होना या बीपी कम ज़्यादा हो जाना या शुगर इधर उधर हो जाना, तो यहाँ से ही, यहाँ इस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर में जो डेटा है उसके अनुसार ही यहाँ से कुछ फ्रीक्वेंसी हम वहाँ पे भेजते हैं। धरती पे रहकर स्पेस में वो कुछ फ्रीक्वेंसी सेंड करते हैं उस एस्ट्रोनॉट को जिसको तकलीफ है, और वो ठीक हो जाता है। स्वामी जी भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। और उन्होंने ये भी कहा कि फ्यूचर में ये जो बड़ी बड़ी जायंट टेक कंपनियां हैं जो हेल्थ और वेलनेस में काम कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड हीलिंग थेरेपी में बहुत इनोवेशन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी बता दूं कि ये आपको शायद पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसमें इनोवेशन कर रही हैं कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड हीलिंग थेरेपी। और फ्रीक्वेंसी काम करती है, निकोलस टेस्ला के बारे में और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो वो कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि फ्यूचर मेडिसिन इज फ्रीक्वेंसी। निकोलस टेस्ला भी कहते हैं कि अगर आपको यूनिवर्स को समझना है तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के आधार पर समझिए, क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज होती है फ्रीक्वेंसी, वेव्स, एनर्जी। तो बड़ी बड़ी जायंट टेक्निक कंपनियां ये ऐसे ऐसे डिवाइस बनाने जा रही हैं कि जिससे अगर किसी भी पर्सन को कोई इश्यू हो रहा है, कोई बीमारी है, हेडेक हो रहा है या कोई भी ऐसी कोई बीमारी है, तो उस छोटे से डिवाइस में ही ऐसा सेंसर लगा होगा कि जो उस पर्सन को एनालाइज कर देगा कि इसको ये फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। और वो पर्सन, क्योंकि छोटा सा ही डिवाइस बनाएंगे कंपनियां, ताकि जैसे मोबाइल सब लोगों को अवेलेबल हो गया है, ठीक है, पहले बड़ा कंप्यूटर था लेकिन आज लैपटॉप आ गया, सबके पास अवेलेबल है। सेम तरीके से छोटे छोटे ऐसे डिवाइस बनाएंगे किससे जैसे मैक्सिमम लोगों को ये अवेलेबल हो जाए। तो फिर मैक्सिमम लोगों के पास इस तरह का छोटा डिवाइस होगा जो मेरे पास है, जो मैं हिली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हिली है। इस तरह का छोटा डिवाइस होगा, लोगों को अगर कुछ भी इश्यू है तो ये हिली निकालेंगे, यानी ऐसा कोई भी डिवाइस से निकाले फ्रीक्वेंसी वाला, और फ्रीक्वेंसी ले लेंगे और उनको ठीक होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, 2050 तक इन सब का प्लानिंग है, 2050, ठीक है। तो कितना बड़ा इनोवेशन फ्यूचर में आने जा रहा है, और हीलिंग का भी कितना ब्राइट फ्यूचर है ये आप समझ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बेस्ड हीलिंग थेरेपी ये अपने आप में ही, जैसे कि मुझे कोई अगर कोई इश्यू है तो अपने आप में ही ये इसमें सेंसर लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसर के माध्यम से मुझे एनालाइज करेगा कि मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, और मुझे जब भी कोई इश्यू होगा मैं इसकी मदद से वो फ्रीक्वेंसी ले लूँगा और मैं ठीक होने लगूँगा। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। और कुछ स्पिरिचुअल गुरु और कुछ स्पिरिचुअल संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी हिली ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप हिली के बारे में और जानिए, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इससे रिलेटेड बिजनेस में भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी बहुत ब्राइट है, क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट है
तो इससे रिलेटेड जो बिज़नेस है उसका भी फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, तो अगर आप हीली के परचेज करना चाहते हैं, हीली के बारे में और जानना चाहते हैं, इससे रिलेटेड जो बिज़नेस है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो 9974969080 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं इसके बारे में डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। हमारी रेगुलर मीटिंग्स भी होती रहती है फ्री में, ठीक है, हीली के बारे में। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल ज़रूर से करें। ठीक है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ये वीडियो देख लिया होगा आपने, ठीक है। हम तो कहीं पे भी घूम रहे हैं, लेकिन दुनिया कहाँ जा रही है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हीली, देख लीजिए। बहुत ही छोटा सा डिवाइस, लेकिन बहुत काम का, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है इसके बारे में। ठीक है, ओके। तो ये ऊपर आई बटन पर और लास्ट में कुछ हीली की वीडियो भी मिल जाएंगे, आप उसको जरूर से देखिए। साथ ही साथ होलीफायर की एंजल थेरापी, आकाशिक रिकॉर्ड, NLP, इससे रिलेटेड भी आप वीडियो मिल जाएंगे। इस तरह की ऑनलाइन कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।